Okay, so let's begin with it. As we planned on in the high time frame analysis, we can see some structure like this, and exactly we saw something like this. Okay, so let's just deep down on the lower time frame to see where we could have taken advantage of this. So I remember मैंने जो मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, मैंने जब मॉर्निंग में प्री लंदन सेशन का एनालिसिस डाला था, in that I was saying that ki I was expecting this move to come in the NY session or pre-NY session, but this move actually came in the pre-London session. अब प्राइस में जो यहाँ से वॉल्यूम बना है, just kept pushing up, and if you notice, ये जो प्राइस का जो मूवमेंट था, it was around see कितना 350 pips in one way. That was epic, man. So let's just go with the candle by candle. So we generally focus on H1 candle, okay, and lower time frame we will go to see where we could have taken trades, and H1 के हिसाब से we will define our range, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, and whatever थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ट्रेड ब्रेकडाउन में. Okay, तो as we see, sorry, as we see, this is what we planned in our analysis system, and we were expecting a candle यहाँ पे लो ब्रेक करेगा, we will come down to retest this low, इसके बाद maybe we can see a upside move, but instead of happening that, let's just study this area. Okay, if you remember, मैंने यहाँ पे बोला भी था this range is around 35 या 36 pips का range था. I still remember, yeah, 36 pips का range है, and I said कि I'm not interested in this area to take any buying or selling. Okay, but just notice हुआ क्या था. So जब मैं बोला था, candle was at this candle was printing at that moment. जब मैंने बोला था, तो at this candle was printing at that moment. तो I was like कि यही वाला candle शायद लोअर एक बनाएगा and ऐसे चला जाएगा. This is what I was anticipating. फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, होगा whatever. But हुआ क्या सी, if you observe, जो रेजिस्टेंस एरिया बना है ना, प्राइस यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस ने एक क्या बुलिश कैंडल बनाया, बट इसको डोजी बोलेंगे, वी विल नॉट काउंट दिस कैंडल. फिर नेक्स्ट कैंडल केम अप, क्लोज्ड बुलिश, took rejection from this, the resistance came down and closed bullish. एंड उसके बाद अगर ए वाला कैंडल इस हाई को ब्रेक कर रहा है, देन व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम कैंडल टू डू? Obviously, man, it's going to break the high and retest this area, and exactly that happened. So अगर कैंडल स्ट्रेट जाता ना, तो वहां पे बाइंग लेना थोड़ा टफ होता, बट अगर कैंडल रुक के पॉज लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के एरिया को ब्रेक करके जा रहा है, एट दैट मोमेंट ना इट बिकम अ रियली गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड, बिकॉज एट दैट टाइम प्राइस ने पॉज लिया, उसके बाद उस एरिया को ब्रेक करके जा रहा है, देन फेक आउट की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. बट अगर प्राइस सीधा जाता है ना, एट दैट मोमेंट रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. सो अगर मैं यहाँ पे होता ना, तो मे बी मैं एक स्मॉल ट्रेड लेता जरूर. मैं नहीं बोला कि मैं अपना फुल रिस्क ट्रेड जाता है यहाँ पे, बट एक स्मॉल ट्रेड जरूर मैं ट्राई करता, जस्ट टू चेक माई बायस और चेक माई थियरी वट एवर जो भी मैंने अभी बोला उसके ऊपर. सो इट वॉज अ रियली interesting market. So if you notice over here, this is where H1 candle close, right? मैंने इसलिए उसको मार्क किया था वहां पे, so that we can go candle by candle. So this is where H1 candle closed, and H1 candle closed above all this resistance. So what we will expect from this candle to do? Just keep pushing up. Let's go on 30 minute. Let's see, do we have anything? Even though 30 minute candle ने resistance के ऊपर closing दिया है,
अगर हम ए वाले ट्रेड को नहीं भी लिए होते, then possibly we could have taken this trade. But now the thing is, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम हाई ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट। इस हाई के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, बिकॉज दिस वन ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस पे क्लोज दिया है। ओके, हाई ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। और if you have a confidence, if you have seen H1 candle and 30-minute candle in the past doing that, then maybe you have taken this trade on just before candle closed or just before new candle open, like जैसे ये वाला कैंडल ओपन हुआ तो उस पे लिए होते। सो दिस इज डिफरेंस। अगर मैं हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेता हूँ, मेरा स्टॉप इज एटलीस्ट गोइंग टू बी 12 पिप्स, राइट। अगर मैं ऑन द स्पॉट ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप इज गोइंग टू बी 12 पिप्स। सो इफ यू नोटिस, इस कैंडल की भी लोअर बिक नहीं है एंड इस कैंडल की भी लोअर बिक नहीं है। तो दिस जो अभी वाला कैंडल क्लोज हुआ, when there was no lower big, so it was indicating there is actually a volume or too much volume. That's why price ने यहाँ पे lower big नहीं बना। And same happened with here. But यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, that's was something question mark and we don't know that. Okay, वो तो हमें भी नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। But मैं वेट करता हूँ ऑनेस्टली, मैं एटलीस्ट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के क्लोजिंग का वेट करता हूँ। तो रीजन ऑफ वेरी सिंपल, द रीजन वाज वेरी सिंपल। अगर 5 मिनट कैंडल बेरिश क्लोजिंग दिया होता ना तो शायद मैं ले लिया होता, बट इट क्लोज बेरिश। अगर उस मोमेंट में 5 मिनट कैंडल देखा होता, आई वुड हैव वेटेड फॉर दिस 5 मिनट कैंडल टू क्लोज, उसके बाद ही मैं बाय लिया होता। एंड दैट बाय वुड बी अराउंड लाइक दिस। आई एम रेसिंग दिस 10 pips फॉर दिस एरिया, 20-23 pips. Obviously, this was a mess. Still is 5 minute candle. 1, 2, 3, 4, 5. 25 मिनट कैंडल इस रीजन पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया। सो दैट वाज एक्चुअली नॉट अ गुड बाय if you go on lower time frame to see. So yeah, that wasn't a good buy as we see on lower time frame. But it was a buy. Whether you believe it or not, but it was a buy. इतना मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद candle was over here, we can't take any sales or we can't take any buy, we just have to wait. तो if you see, यहाँ पे 30 मिनट कैंडल किया गया, हमने यहाँ तक आ गए, उसके बाद यहाँ पे हम बाय तो ले नहीं सकते, और जब प्राइस रिट्रेस कर रहा है वी कांट टेक अ सेल, बट we will wait for price to make a support. That's something we know, we do wait. तो हुआ क्या, प्राइस came down, made a support over here. Okay, after this support we could have taken sales, buy, sorry. So यहाँ पे एक stop loss हुआ होता, the way this candle came down, that was a stop loss 100%. That was a stop loss. Okay, let's go on 30 minute time frame view. What we can see, अगर हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए होते 30 मिनट का, सपोर्ट के फॉर्मेशन का वेट किए होते, लेट्स से, बिकॉज इस 30 मिनट कैंडल ने क्लोजिंग दिया है फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस एंड दिस, दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है इस 30 मिनट कैंडल ने। दैट शोइंग कि देयर इज अ वॉल्यूम फॉर बाइंग साइड स्टिल। जो प्राइस एक्शन है, ये लंदन ओपन का प्राइस एक्शन है, सी 12 o'clock, और लंदन ओपन स्टार्ट होता है 12:30 को। सो इट्स लाइक जस्ट सेशन स्टार्ट ही होने वाला है, तब का प्राइस एक्शन है। And if you go on a 15-minute time frame, what we can see, I think this candle came down to make a lower wick first. Let's check on 5 minute time frame. See, this candle came down to make a lower wick first. You know what? I have really this thing in my mind. Na, whenever I'm seeing such kind of moment, na, I want to take a trade on this setup. Man, see, candle is coming down, but if 5 minute candle taking retracement, एंड 30 मिनट कैंडल स्टार्ट हुआ था ये वाला, एक 5 मिनट 5-10 दो
10 मिनट तक कैंडल वॉज इन द डाउन ट्रेंड, इन दी डाउन, इस हाई को ब्रेक नहीं किया था, but the last candle came up without making lower wick, it broke the high and went up. So the time this candle ने इस candle का high break किया था, previous candle का high break किया था over here, this candle ने broke this high, that was our entry point. And believe me, इस type के trade on 5 minute I have never taken. मैंने 30 मिनट पे on 15 मिनट पे लिए हैं, but on 5 minute I have not taken this kind of trade. But in future, when I will come with full fledged with good money, I'm going to do that. I'm going to test this one on the live market. सेम थिंग जो मैंने 15 मिनट 30 मिनट पे किया है, उसी को मैं 5 मिनट पे भी करने वाला हूँ विद द हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ऑब्वियसली. सो यहाँ पे मैंने बाइंग के लिए इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ बिकॉज द वे द 30 मिनट कैंडल हैव क्लोज्ड, that is why I am going for the buy over there. तो हम देख रहे हैं जो विक बना है, ये विक कैसा दिख रहा है ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, ऑन द 5 मिनट टाइम पे. 30 मिनट टाइम पे तो बुलिश ही दिखेगा ऑब्वियसली. सो दिस ट्रेड वुड बी अराउंड लुक लाइक buy. See, whenever candle is breaking the high of the previous candle, at that moment 90% of the time मेरा stop loss जो होता है ना, वो करंट कैंडल के लो पे ही होता है. And this would be my TP 30-35 pips enough because there is a, अच्छा यहाँ पे कोई resistance है, yeah there is this resistance, so we don't know whether this one gonna break or not. So अगर 15 मिनट की बात करें तो नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल एक्चुअली वेंट अप. अगर जिसने भी कैंडल को होल्ड किया होता ना इस रीजन के आसपास, सो ही मे बी एबल टू, क्या बोलते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस. बट आई डोंट नो, मैं मोस्टली यहाँ तक अपना 90% क्लोज कर देता एंड लीव इट टू रन वट एवर. सो समथिंग सेम हैपन जैसे कि यहाँ पे हुआ था अपने को ऑन द 15 मिनट टाइम पे, यहाँ पे 30 मिनट पे हुआ है, which we saw on the 5 minute time frame over here. See, this thing came down again, made support, then went up. 15 मिनट भी ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा सपोर्ट फॉर्मेशन. सी this impulse entry trade. अगर राजा बैंक यहाँ पे होता ना, राजा यहाँ पे होता ना, 100% उस ट्रेड को लिया होता, 100%. आई थिंक उसने स्ट्रीम पे वाला ट्रेड लिया भी था, तो कब इसी ट्रेड पे निकल भी गया होता और दिस हाई 40-45. Yeah, I want to show you something in this whole structure wave. कैंडल ने ना एक चीज मेंटेन किया बहुत ही ब्यूटीफुली. दिस स्ट्रक्चर टिल हियर. सो ये जो हमारा मूव था, क्या बोलते हैं, कहाँ जो मूव था हमारा फ्रॉम प्री लंदन, प्राइस ने इस मूव को एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुली क्या होता है रिस्पेक्ट किया. इवन दो सो फार यू में से कि यार अभी यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे तो ब्रेक किया, बट इट्स लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर. जो इंट्राडे का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से बात कर रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया. सो मेरा ये भी एक प्लान है इन कमिंग टाइम में कि whenever I'm planning to क्या बोलते हैं स्केल में पोजीशन और होल्ड में पोजीशन फॉर longer time. In that case ना I am going to use this trend line. Generally मैं high time frame पे use करता हूँ to know the structure and what is going on the market. But I have seen a lot on the lower time frame. It works really well. This is something which I'm gonna implement in coming time. So yeah, this is for it. The market analysis. बाकी अगर जो मूव यहाँ पे आया था, प्राइस फटा था. So after this मैं साइड ट्रेड नहीं लेता. I'll wait for candle to क्या बोलते हैं. So यहाँ पे if you notice हुआ क्या, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे क्लोज किया, right? So this become our most recent support and most recent resistance and support. Okay.
आफ्टर दैट अगर हम लोअर टाइम में जाते हैं तो दिस इज वेयर वी क्लोज आवर ट्रेड। से यहाँ पे क्लोज करिए, राइट, ओवर हियर वी क्लोज आवर ट्रेड। यहाँ से लिए थे, यहाँ पे किए। उसके बाद प्राइस ने उसी रेंज में एक दो ट्रेड दिए थे, बट आई विल से दैट वाज द रिस्की ट्रेड। इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अभी। सो ऑलरेडी मैंने हमको इतना अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिल गए थे। अगर यहाँ पे नहीं मिले होते तो मे बी हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई किए होते ऑन द सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, लाइक ओवर हियर प्राइस केम डाउन अगेन। इस सब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास हमें सपोर्ट मिला, देन मे बी फ्लिप पे हम बाय लिए होते, मे बी यहाँ पे निकल गए होते बस 20 पिप 15 पिप का ट्रेड यहाँ पे मिला होता आराम से, जो कि प्राइस ने दिया भी है वैसा स्ट्रक्चर। सो मे बी, आई डोंट नो, मे बी, बट we were in this range before the London Open. Okay, this is where the London Open start हुआ था। एंड जब लंदन ओपन स्टार्ट हुआ तो आई थिंक न्यूज था अराउंड, आज 2 या 3 न्यूज थे। तो इसके लिए आई थिंक मे बी वी सॉ दिस रेंजिंग मार्केट। तो यहाँ पे ट्रेड तो भाई मुश्किल ही है, इसमें कुछ बोलने का ही नहीं। रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ब्रेक किया। This was kind of tough and confusing, but the only one who can take this trade, the one who trade lower time frame, otherwise it's tough to trade on the H1. Yeah, at 30 minutes to खासकर. But if you go on lower time frame, you see price उतना confusing नहीं था। अगर जिसने यहाँ पे भी बाय किया हुआ था विद स्टॉप लॉस, उसको भी एक अच्छा यहाँ तक मिल गया होता। एंड जो गैप अप दिख रहा है, दिस वाज द न्यूज प्राइस वेंट अप। सो या, दिस वाज द ओवरऑल thing from my side. एनवाई सेशन इज समथिंग विच एट टू बी टेस्टेड। मैंने उतना भी एनवाई सेशन में ट्रेड नहीं लिए हैं, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट मोर, बट या इट्स रियली गुड टाइम फ्रेम टू ट्रेड। जहाँ पे प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है, इफ यू आर ट्रेडिंग एनवाई सेशन देन मेक श्योर। बड़े मूव तो एनवाई सेशन में ही आते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़े मूव होते हैं एनवाई सेशन में ही आते हैं। बट बड़े मूव एनवाई सेशन में आते हैं, दिस डजंट मीन यू कांट कैपिटलाइज ऑन द लंदन सेशन, जिसमें मूव क्लीन आते हैं, स्लो स्टडी आते हैं। सो या, दिस इज फॉर इट। अभी ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन हुआ, ये जो सब गया है, क्या स्ट्रक्चर मेंटेन होता है कि नहीं होता। बिकॉज एज लॉन्ग एज आई नो, आई आई वांट टू सी दिस वन ना टू बी जस्ट इन दिस कंसोलिडेशन मोस्टली। प्राइस डिसीजन को ब्रेक करेगा मे बी नॉट टुडे, टुमारो, बिकॉज टुडे इज अ बैंक हॉलीडे। मोस्ट प्रोबेबली आई एम वी गोना सी प्राइस रेंज करेगा एंड मे बी आफ्टर एनवाईएससी ओपन, जो कि मैंने पास्ट में देखा है, whenever there is a यूएस बैंक हॉलीडे सेशन, सो एट दैट टाइम ना हमें मूव मिलते हैं। जो भी मूव मिलते हैं बहुत ही क्लीन होते हैं, अदरवाइज मिलते ही नहीं है, प्राइस एक रेंज में ही होता है। एंड अगर वो मूव मैंने मोस्टली देखा है कि पोस्ट एनवाईएससी ओपन ही आया है, पोस्ट एनवाईएससी ओपन। एनवाई पे वॉल्यूम नहीं होता है, लंदन में थोड़ा वॉल्यूम हो जाता है समटाइम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉल्यूम आता है, अच्छे वॉल्यूम, कैंडल वन साइड जाता है, दैट कम अराउंड एनवाईएफसी ओपन। आई हैव सीन अ लॉट। सो लेट्स सी आज एनवाईएफसी ओपन के टाइम पे क्या होता है। एनवाईएफसी ओपन इज अराउंड 7:30 और 8 के आसपास, विल सी उस टाइम पे क्या होता है।